In our last video, we were talking about the different methods of charging of a body. Today, we shall start the classification of materials, and after that, the properties of charge. Metals may be classified into conductors, insulators, semiconductors, semi-metals and dielectrics, out of which for the purpose of the study of electrostatics, conductors, insulators and dielectrics are important. आज हम लोग मेटल के क्लासिफिकेशन पर विचार करेंगे और इसके बाद चार्ज के प्रॉपर्टीज पर। मेटल को कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सेमी मेटल्स और डाइलेक्ट्रिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टडी के लिए इनमें से कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पर विचार करेंगे, आगे डाइलेक्ट्रिक्स पर। कंडक्टर वैसा मटेरियल जिससे होकर चार्ज आसानी से पास करता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनके कारण चार्ज आसानी से पास होता है, उनको कंडक्टर्स कहा जाता है। कंडक्टर्स दोज materials through which charge can pass through easily. Examples: तो कंडक्टर के उदाहरण में हम लोग लेंगे मेटल्स, ग्रेफाइट विच इज ए नॉन मेटल, ह्यूमन बॉडी, दी अर्थ और भी बहुत से हैं। इंसुलेटर्स those materials through which charge cannot pass through easily are called insulators. वैसे मटेरियल जिनसे होकर चार्ज आसानी से पार नहीं करता है, उनको इंसुलेटर कहते हैं।
Examples: plastic, hard rubber, glass, dry wood, etc. Let us think about the properties of charge. An important property of charge is the conservation of charge. Net charge can neither be created nor destroyed. It means if a certain quantity of positive charge appears or disappears in an isolated system, an equal quantity of negative charge must appear or disappear simultaneously and vice versa. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। इसके आधार पर नेट चार्ज उत्पन्न नहीं किया जा सकता। नेट चार्ज ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अर्थात अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कोई पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो या डिसअपीयर हो, तत्क्षण उतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज अवश्य ही अपीयर या डिसअपीयर होगा। दैट इज द टोटल चार्ज ऑफ एन isolated system remains constant. किसी सिस्टम का, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड दूसरे से अलग धड़क, किसी से देन लेन नहीं कर रहा हो चार्ज का, तो दी टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, वह कंजर्व रहता है। एग्जाम्पल पेयर प्रोडक्शन। जब गामा रे किसी टारगेट से टकराती है तो एक इलेक्ट्रॉन बनाती है, तत्क्षण एक पॉजिट्रॉन बनाती है। तो गामा रे को कोई चार्ज नहीं था। जब इसने चार्ज बनाया तो इक्वल एंड अपोजिट, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का उतना ही पॉजिट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव तो पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव, दोनों को जोड़े तो पहले जितना चार्ज था शून्य, बाद में हो गया। एंड अनदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज एडिटिविटी। लाइक मास, charge can be added. Mass is only positive, but charge may be positive or negative. So, in addition of charge, we consider about its respective signs. Like mass, charge may be added. Charge follows the algebraic rules for their addition. तो चार्ज योग के लिए अलजेब्राइक रूल फॉलो करता है, अर्थात
चार्ज को जोड़ने में उनके चिन्हों का ध्यान रखना। लेट अस टेक एन एग्जांपल। Let +3 माइक्रोकूलम -7 माइक्रोकूलम and -3 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम charges are given to an isolated system which was initially uncharged. Then its total charge Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3 equals 3 microcoulomb minus 7 microcoulomb minus 10 microcoulomb, which yields minus 14 microcoulomb. It is called the addition of charge. Let us take another example. If now another charge Q4 equal to 1 millicoulomb is given to it, then 1 millicoulomb Q4 equal to 1 multiplied with 10 power minus 3 coulomb. Now the total charge of the system becomes Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. We should write all these in the same system of units. Then 3 microcoulomb, 3 multiplied with 10 power minus 6 coulomb minus 7 multiplied with 10 power minus 6 coulomb minus 10 multiplied with 10 power minus 6 coulomb plus 1 multiplied with 10 power minus 3 coulomb. Then the total charge is 10 power minus 6, 3 minus 7 plus 10 plus 1000 minus 10 plus 1000 equals 1486. 986 multiplied by 10 power minus 6 coulomb equals 986 multiplied with 986 माइक्रोकूलम आंसर। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि पहले सिस्टम को हमने दिया Q1 3 माइक्रोकूलम, Q2 -7 माइक्रोकूलम और Q3 -10 माइक्रोकूलम। तब इसका कुल चार्ज है -14 माइक्रोकूलम। फिर इसको दे दिया इस आइसोलेटेड सिस्टम को Q4 1 मिलीकूलम। तब 1 मिलीकूलम को अगर कूलम के रूप में ला रहे हैं तो 1 × 10⁻³ कूलम, और फिर इस सबको जोड़ दें चिन्हों के साथ तो ये आता है 986 माइक्रोकूलम। And another property of charge is quantization. The smallest amount of charge which is found freely in nature is ±. Thus the total charge of a body
must be an integral multiple of plus minus e, that is q equal to n ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से प्राप्त चार्ज की सबसे छोटी इकाई प्लस ई या माइनस ई है। अतः किसी बॉडी का टोटल चार्ज ई का पूर्णांक गुणज होता है। हियर n इक्वल टू 1 2 3 डॉट। ई से छोटा टुकड़ा स्वतंत्र रूप से किसी बॉडी में नहीं रह सकता है। साइंटिस्ट का भरोसा यह है, इलेक्ट्रॉन का कोई सब स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन प्रोटॉन का सब स्ट्रक्चर है, न्यूट्रॉन का भी सब स्ट्रक्चर है। न्यूट्रॉन को तो नेट चार्ज नहीं होता है, लेकिन सब स्ट्रक्चर है। ये क्वार्क्स के बने होते हैं। क्वार्क्स जिनका चार्ज प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 1/3 ई प्लस माइनस 2/3 ई, इनसे बने होते हैं। अर्थात प्रोटॉन को न्यूट्रॉन का सब स्ट्रक्चर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोई सब स्ट्रक्चर नहीं। दिया और लिया जाता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग समझ चुके हैं। इसलिए चार्ज का जब भी एक्सचेंज होगा तो वह इंटीग्रल मल्टीपुल के रूप में ही इंटीग्रल मल्टीपुल के रूप में ही होगा। अपार्ट फ्रॉम चार्ज एनर्जी एंगुलर मोमेंटम आर ऑल्सो क्वांटाइज एज द क्वांटम ऑफ चार्ज इज ई। सिमिलरली द क्वांटम of energy is h nu, and the quantum of angular momentum is h upon 2 bar, where h is Planck's constant। तो जिस तरह से चार्ज क्वांटाइज है, उसी तरह से एनर्जी भी क्वांटाइज है। एनर्जी का क्वांटम E बराबर एच न्यू होता है। एनर्जी का क्वांटम एच न्यू होता है, एच न्यू के रूप में आता जाता है। और इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज है, और एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम L बराबर h/2 पाई होता है, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है। Let us see some another property of charge. On a conducting surface, the surface charge density at a point is inversely proportional to the radius of curvature of the surface at that point. देखिए, किसी सरफेस पर चार्ज है तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट पर क्या है। जहां अधिक मोटा होगा वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा, जहां पतला होगा वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी अधिक होगा। दिस इज व्हाई चार्ज लीक्स अवे फ्रॉम सरफेस। यही कारण है
कि चार्ज हमेशा शार्प पॉइंट जहां रहता है वहां से लीक करता है। अगले प्रॉपर्टी पर विचार करें तो चार्ज इज इनवेरिएंट अंडर स्पीड। स्पीड बदलने से जिस बॉडी पर चार्ज है उस बॉडी का स्पीड बढ़ा दें या घटा दें, चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह स्पीड के अंदर इनवेरिएंट होता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज जहां रहेगा वहां कुछ न कुछ मास अवश्य होगा, लेकिन मास बिना नेट चार्ज के हो सकता है। एग्जाम्पल, फोटॉन्स। फोटॉन्स को रेस्ट मास नहीं है, इसलिए इस पर चार्ज नहीं हो सकता। न्यूट्रिनोज, न्यूट्रिनोज को भी रेस्ट मास नहीं है, इसलिए न्यूट्रिनोज को भी चार्ज नहीं हो सकता। इसे याद रखें आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए। फोटॉन्स, न्यूट्रिनोज आदि को चार्ज नहीं है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए स्टेशनरी चार्ज generates electric field around it. An unaccelerated charge generates electric field as well as the magnetic field around it. An accelerated charge, charge creates electric field, magnetic field and radiates energy. तो चार्ज जब स्टेशनरी रहता है तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। यही चार्ज अगर बिना एक्सेलरेशन के मोशन करने लगे यूनिफॉर्म स्पीड से, तब यह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। अगर यही चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन करने लगे तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करते हैं, अर्थात एनर्जी रेडिएट करते हैं। और प्रॉपर्टी में आप ले सकते हैं चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका डायमेंशन ले सकते हैं, दी डायमेंशंस ऑफ द चार्ज इज आई टी। आई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक करंट, टी स्टैंड फॉर टाइम। Here there is a few objectives. When a soap bubble is charged, it. वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर खुद करें और उसके बाद मैं बताता हूं, उससे मिलान करें। When a soap bubble is charged, it. First option is contracts, second expands, C does not undergo any change, D bursts.
तो जब हम किसी सॉफ्ट बबूल को चार्ज कर देंगे तो पहली बात चार्ज अपर सरफेस पर रहता है और लाइट चार्ज के बीच रिपल्सन होगा जिसके कारण इट एक्सपेंड्स। तो ए का आंसर हुआ इट एक्सपेंड्स। कितने नंबर में है? बी नंबर में। सेकेंड, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। अब देखिए ये ऑप्शन दिया है ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बी दिया है ओनली ए मैग्नेटिक फील्ड, सी दिया है एन इलेक्ट्रिक एंड ए मैग्नेटिक फील्ड, डी दिया है नाइदर एन इलेक्ट्रिक नॉर ए मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों ने पढ़ा है ए स्टैटिक चार्ज जनरेट्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो चार्ज अगर स्थिर रहे तो वह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, अगर वह यूनिफॉर्म मोशन में रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो यह दोनों जनरेट करेगा, एन इलेक्ट्रिक एंड ए मैग्नेटिक फील्ड। The answer is C, an electric and a magnetic field. Third question, the ratio of EMU of charge to ESU of charge is। तो आपने इसको भी पढ़ा है, यह रेशियो होता है 3 गुना 10 पावर 10। C का एक 3 गुना 10 पावर 10। Which charge is not possible। तो देखिए E को यहां 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम कहा गया। ए ऑप्शन है 5E, पॉसिबल है, इंटीग्रल मल्टीपल है E का, और B इक्वल टू है -5E, यह भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यह भी इंटीग्रल मल्टीपल है। C नंबर में है 1.5E, इट इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। यह पूर्णांक गुणज नहीं है E का, इसलिए यह संभव नहीं है। फिर यह संभव है तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर का C। नंबर 5, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। हियर यू हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर द क्वांटाइजेशन। चूंकि Q इक्वल टू NE, therefore n इक्वल टू Q अपॉन E। अब Q का मान आपको दिया है 1 कूलम नेगेटिव चार्ज और E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो -1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम, दोनों को भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 18। तो ये आंसर हमारा हो गया B। Thanks.